Much, Renik, for joining us on the telecast. Moving on, Indonesian President Prabowo Subianto is visiting India as the chief guest for the Republic Day celebration held meeting with Prime Minister Narendra Modi to bolster political, defense and security cooperation between the two nations. This marks President Subianto's first state visit to India since taking office in October 2024. And as per sources, the discussions will cover a wide range of bilateral issues, including trade, healthcare, digital technologies, energy and tourism. A potential highlight of the visit could be an announcement on Indonesia's procurement of BrahMos supersonic cruise missiles from India. So that's the latest that we are coming to know at this point of time. A bilateral meeting is going on in between Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President, and we're also seeing those are the live visuals on your screen, viewers. And when it comes to the ceremonial welcome that we have seen earlier, and now we can see key MOUs are being exchanged. There's External Affairs Minister S. Jaishankar as well. And we have with us Sanjay Sharma joining us on the telecast. Sanjay, in terms of these bilateral meetings and the key MOUs being signed between India and Indonesia, what are the details that are coming in? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो भारत की यात्रा जो उनकी हो रही है वो गणतंत्र दिवस के प्रमुख अतिथि होंगे। हमारे हर साल किसी न किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया जाता है 26 जनवरी की परेड के लिए, गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनाया जाता है। इस बार इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को बुलाया गया है और वो भारत आए हुए हैं। पिछले 2 दिन से उनकी लगातार यहाँ पर अलग अलग मुद्दों पर चर्चाएं हो रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात थी और गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेंगे। और साथ ही साथ भारत और इंडोनेशिया के बीच में कई सारे जो सांस्कृतिक संबंध है, पुराने सांस्कृतिक संबंध है, भारत की संस्कृति इंडोनेशिया में कहीं न कहीं होती है। वहाँ पर आज भी रामलीला का मंचन आज भी किया जाता है। कई सारे वहाँ पर हिंदू मंदिर भी हैं। तो ये सारी की सारी ऐसी चीजें हैं जो कि भारत और इंडोनेशिया को एक साथ जोड़ती है, दोनों का कल्चर एक साथ जोड़ती है। साथ ही साथ ट्रेड में भी भारत और इंडोनेशिया अब आगे बढ़कर के एक साथ मिलकर के काम करने वाले हैं। तो उसको लेकर के क्या क्या चीजें हो सकती है, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत हो रही है, कल भी बातचीत हुई थी, कल एक दौर की बातचीत हुई थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ एक डेलीगेशन मिला था इंडोनेशिया का, उनके साथ ट्रेड पर बात हुई थी। और कल गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि बन रहे तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। Sanjay, when it comes to this contingent from Indonesia that are set to participate in Republic Day parade, this will be the first time that an Indonesian marching and band contingent will be participating in a Republic Day parade. पहली बार हो रहा है जबकि इंडोनेशिया के किसी प्रेसिडेंट को यहाँ पर बुलाया गया है मुख्य अतिथि के तौर पर गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए, गणतंत्र दिवस की परेड के लिए। तो ये एक बड़ा सम्मान इंडोनेशिया को जो दिया गया है वो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को भी परिलक्षित करता है कि किस तरीके से ईस्ट जो है, जिस उन्होंने जो एक मंत्र दिया है कि लुक ईस्ट जो पॉलिसी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो उसको मजबूत करती है। हमने देखा किस तरीके से सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, इनके साथ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, जिसका फायदा भारत को इकोनॉमिक रूप से भी मिलेगा। और इनके साथ में भारत का एक नया, आप कह सकते हैं, ट्रेड का नया अध्याय भी शुरू होने जा रहा है। All right, Sanjay Sharma, thank you so much for joining us on the telecast. Let's cut across to this bilateral meeting between the two, India and Indonesia, and Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President. India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, distinguished guests and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. Your Excellency, Rashtrapati and my brother Prabowo Subianto, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के सभी साथी, नमस्कार। भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया हमारा मुख्य अतिथि देश था और यह हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि जब हम गणतंत्र के 75 वर्ष मना रहे हैं, इंडोनेशिया एक बार फिर इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बना है। इस अवसर पर
मैं राष्ट्रपति प्रबोव उसका भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, 2018 में मेरी इंडोनेशिया यात्रा के दौरान हमने अपने साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में आगे बढ़ाया था। आज राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ आपसी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा हुई। रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हमने तय किया है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में साथ काम किया जाएगा। हमने मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और डी रेडिकलाइजेशन में सहयोग पर भी बल दिया है। आज मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी में हुए समझौते से क्राइम प्रिवेंशन, सर्च एंड रेस्क्यू और कैपेसिटी बिल्डिंग में हमारा सहयोग और मजबूत होगा। पिछले कुछ वर्षों में हमारी द्विपक्षीय व्यापार में तेजी आई है और पिछले वर्ष यह $30 बिलियन से अधिक हो गया है। इसे और बढ़ाने के लिए हमने मार्केट एक्सेस और ट्रेड बास्केट को डाइवर्सिफाई करने पर बात की है। प्राइवेट सेक्टर भी हमारे प्रयासों में बराबर का भागीदार है। आज हुई सीईओ फोरम की बैठक और निजी क्षेत्र में जो समझौते हुए हैं उनका हम स्वागत करते हैं। फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में हमने आपसी सहयोग को और सशक्त करने का निर्णय लिया है। हेल्थ और फूड सिक्योरिटी के सेक्टर में भारत अपने अनुभव जैसे कि मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडोनेशिया के साथ साझा कर रहा है। हमने तय किया है कि एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस और स्टेम एजुकेशन के क्षेत्रों में भी साथ मिलकर काम किया जाएगा। दोनों देशों की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज के बीच ज्वाइंट एक्सरसाइज की जाएगी। साथियों, भारत और इंडोनेशिया के संबंध हजारों वर्ष पुराने हैं। रामायण और महाभारत से प्रेरित गाथाएं और बाली यात्रा हमारे लोगों के बीच अनवरत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों के जीते जागते प्रमाण है। मुझे खुशी है कि इंडोनेशिया में बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर के बाद अब हम प्रम्बानन हिंदू मंदिर के संरक्षण में भी योगदान करेंगे। साथ ही वर्ष 2025 को भारत आसियान ईयर ऑफ टूरिज्म के रूप में मनाया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथियों, आसियान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इंडोनेशिया हमारा महत्वपूर्ण पार्टनर है। इस पूरे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, समृद्धि और रूल बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए हम दोनों प्रतिबद्ध हैं। हम सहमत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आसियान यूनिटी और सेंट्रलिटी को बल दिया गया है। G20 आसियान
इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जैसे मंचों पर हम मिलकर काम करते रहे हैं और अब हम इंडोनेशिया की ब्रिक्स सदस्यता का भी स्वागत करते हैं। इन सभी मंचों पर ग्लोबल साउथ के देशों के हितों और उनकी प्राथमिकताओं पर हम सहयोग और समन्वय से काम करेंगे। एक्सेलेंसी, कल गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आपकी भारत यात्रा हमारे लिए गर्व का विषय है। इस समारोह में पहली बार इंडोनेशिया के मार्चिंग दस्तों को देखने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। मैं एक बार फिर आपका और आपके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you. May I now request His Excellency, Mr. Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia, to give his remarks to the media. Your Excellency, Prime Minister Narendra Modi, my good brother, esteemed ministers, high officials from Indonesia and from India, friends from the media, once again, Namaste. I would like to reiterate my highest gratitude for the great honor given to me being received today in my first state visit to India. I was received with great honor today by the President of India, and we had a very intensive, very frank discussion between Prime Minister Modi and his government and myself and my government team. We discussed many key sectors of common interest in which we would like to accelerate the level of cooperation. Of course, in the economic field, this is very important, and I have given direction to my team to accelerate, to expedite, to cut bureaucracy, too much over-regulation, and to put at the foremost the common bilateral interest of India and of Indonesia. I have given direction, and I will continue to give direction, that we need to accelerate and increase the economic partnership with India. If necessary, we will prioritize this relationship in the interest of long-term strategic partnership, which we have agreed upon. We, of course, feel very honored that I will be the chief guest tomorrow at the Republic Day Parade of India. And because the first chief guest in India's first Republic Day Parade was President Sukarno, so this is a great honor for me that I will represent Indonesia tomorrow. Also, the first time an Indonesian military contingent has taken part in a military parade outside of Indonesia. So once again, thank you very much for the great honor extended to us. Therefore, on this occasion, I would like to extend
our congratulations for the celebration of India's 76th Republic Day parade, Republic Day. To all the people of India, may prosperity and success always be with India. Indonesia considers India a long-time friend. In our struggle for independence, history tells us that India was one of the first strong supporter of our independence struggle. All right, we'll slip into a short break. That's a wrap for the bulletin.